Europa. Europa ist ein Kontinent. Viele Länder. Wie viele Länder gibt es da in Europa? Wie viele Länder? Können Sie es vielleicht? In Europa. Es gibt 3 Begriffe. Einmal ist Europa, Europäische Union, und Eurozone. Euro. In Europa circa 5 Länder. Circa. Also das kann fast 5. In Europäische Union 27. 20. In Eurozone 19. So Eurozone bedeutet die Länder, wo Euro als Währung gilt. Währung, करेंसी, जहां पे यूरो एज ए करेंसी चलती है. Europäische Union hat 27 Mitglieder, aber 19 haben Euro als Währung akzeptiert. Und in Europa ganz Kontinent. So, heute sprechen wir über Europäische Union. Das ist dann der, also, ja. Hier sagt man 28. Aber Britain ist nicht mehr Mitglied. Britain इससे हट गया है. जो sind jetzt 27 Mitgliedstaaten, Member States of European Union, Mitgliedstaaten. So, diese Europäische Union, also hier die Europäische Union zählt 28 Mitgliedstaaten, also hier sagt man jetzt 27 Mitgliedstaaten. Über 500 Millionen Einwohner und 24 Amtssprachen. Means 500 million लोग रहते हैं. Amtssprachen मतलब कम्युनिटी. Amtssprache है. Amtssprache का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज. सो 500 मिलियन लोग. कम्युनिटी लैंग्वेज. आम्ट का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज. आम्ट का मतलब ऑफिस होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिस. अभी मैंने मतलब ऐप में देखा कम्युनिटी लैंग्वेज सीखा. कम्युनिटी लैंग्वेज मतलब क्या, कि मतलब जो लोग वहां रहते हैं उनकी लैंग्वेज. हाँ, समाज की लैंग्वेज. कम्युनिटी 500 मिलियन लोग हैं तो वो समाज ही तो है, तो उनकी भाषा. और आम्ट लगने से ऑफिशियल हो जाता है. मतलब ये उन देशों में इतनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं 24. यूरोपियन यूनियन की लैंग्वेजेज हो गई एक तरह से, जिनमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन का कोई भी लॉ वगैरह होता है तो. सो was bedeutet Europa für junge Menschen? Diese Menschen, sie wohnen in Europäischer Union. Warum sind diese Länder zusammengekommen? Es gibt natürlich Vorteile. Wenn
eine Organisation Vorteile bringt, machen die Menschen mit und so machen die Länder auch mit. mitmachen का मतलब ज्वाइन करना. कोई कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन को भी तभी ज्वाइन करेंगे जब उनका फायदा होगा. So, diese drei Menschen wurden gefragt, was bedeutet Europa für sie? Und dann haben sie gesagt. So jetzt, wer beginnt? Kontinent des Friedens. Christina Reiter 24 sagt. Ja, Shora, bitte schon. Was sagt sie? Lesen. Ja, Highlights. Ich komme aus Innsbruck und studierte mit einem Stipendium an der französischen Hochschule für Verwaltung in Straßburg. Die Idee der Europäischen Union begeistert mich. Europa hat sich zu einem Kontinent der Verhandlung und Demokratie entwickelt. Die Europäische Union bedeutet für mich offene Grenzen, ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt, eine gemeinsame Währung und vieles mehr. Okay. So, Sunidhi, das ist Lektion 12, also Text 1. So, diese Menschen sagen etwas über Europäische Union. Sie sagt, Kontinent des Friedens. Europa ist für mich Kontinent des Friedens. Frieden मतलब शांति. शांति का महाद्वीप. कि बाकी महाद्वीपों में कुछ न कुछ लफड़े रहते हैं, हमारे यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में इतने लफड़े नहीं है, मिलजुल के रहते हैं. So, sie kommt aus Innsbruck und studiert mit einem Stipendium an der französischen Hochschule für Verwaltung in Straßburg. Straßburg ist in Frankreich. Kommt aus Innsbruck, aber studiert in Frankreich. French College of Management. ये कोई फ्रेंच कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है फ्रांस में, तो ये इंसब्रुक मतलब ऑस्ट्रिया की रहने वाली है और फ्रांस में पढ़ाई कर रही है. Die Idee der Europäischen Union begeistert mich. यूरोपियन यूनियन का जो आइडिया है, that motivates me. Europa hat sich zu einem Kontinent der Versöhnung und Demokratie entwickelt. वो बोलती है Europa is the continent of, जो फर्जोनों का मतलब है अपीजमेंट, एक दूसरे को मतलब हेल्प करने की कोशिश, सब ग्रुप खुश रहे उसके लिए कुछ न कुछ करता रहता है यूरोपियन यूनियन. किसी में असंतुष्टि नहीं बढ़े, कोई मांगता है तो उसको दो. डेमोक्रेटी एंड डेमोक्रेसी, ऐसे कंट्रीज जिसमें है जिनमें डेमोक्रेसी है. The Idee der Europäischen. Richtig, das ist Genitiv. Die Idee der Europäischen Union. This is Genitiv. The idea of the European Union begeistert mich. Means it makes me happy and I feel very excited and thrilled. Ki wow, this continent has developed as a continent of appeasement and development, democracy. Not development, developed as democracy. All the democratic countries are together here. Die EU bedeutet für mich offene Grenzen, ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt.
Zusammenleben in Vielfalt का मतलब है विविधता में एकता. Vielfalt is विविधता. Different things, different people, different cultures come together. Okay? Eine gemeinsame Währung, a common currency und vieles mehr. And much, much more. Okay, klar. Ja, Mayank. Ist arbeitet seit 4 Jahren in Brüssel. Brüssel für die Europäische Union Generaldirektion. Generaldirektion Übersetzung. Meine Muttersprache ist Slowenisch. Meine Fremdsprachen sind Französisch und Deutsch. Für mich ist Europa ein Arbeitgeber und ich denke bei Europa vor allem an die Europäische Union Institutionen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie an Gesetze und Verträge. Europa bedeutet aber auch wirtschaftliche Entwicklung. So what is the meaning? Saurabh, verstanden? Ich arbeite seit 4 Jahren in Brüssel. I'm working since 4 years in Brüssel für EU Generaldirektion Übersetzung. इनका जो ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट है उसमें काम करता है यूरोपियन यूनियन का. मदर टंग इज स्लोवेनिश मीन्स एयर kommt aus Slowenien. Fremdsprache Französisch Deutsch. He has learned these 2 foreign languages, French and German. Für mich ist Europa ein Arbeitgeber. For me, Europe is Arbeitgeber. कि यूरोप में मुझे तो काम मिला है भाई, मेरे लिए तो यूरोपा ये एज ए मतलब एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का काम करा मेरे लिए, तो इसने मुझे जॉब मिल गया. Und ich denke bei Europa vor allem an die EU Institutionen. ट्रांसलेशन का काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में तो यूरोप की बात आते ही यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस आते हैं दिमाग में. इधर मिटारबाइटर साथ में काम करने वाली कंट्रीज, मिटारबाइटरिnnen लोग und जो भी angesetzt है उन Verträge. लो कानून आपस में इनके एक दूसरे के साथ Verträge. What is Vertrag? दो आपस में काम करते हैं तो पहले Vertrag करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट. सो आपस में कानून, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, EU Institutions. Europa bedeutet aber auch wirtschaftliche Entwicklung. And Europe means also wirtschaftliche, economic development. It is also the meaning. Sunidhi, Sprachen lernen. Okay, Ankit, Sunidhi, ja. Ich bin aus Jelgava in Lettland. Europa heißt für mich Freiheit und viele Möglichkeiten. Man kann reisen, neue Menschen, Sprachen und Kulturen kennenlernen, im Ausland studieren oder auch arbeiten. Zurzeit lebe ich als Au-pair-Mädchen bei einer Familie in München und lerne Deutsch. Ich möchte später entweder in Deutschland oder der Schweiz Umwelttechnik studieren. So, Sunidhi, what is the meaning? Where does this person come from? Lettland. Jelgava in Lettland. Yes. Jelgava जगह का नाम और लेटलैंड कंट्री का नाम. कि लाटविया, लेटलैंड एक लाटविया करके छोटा सा कंट्री है. लाटविया के
यिलगावा से हूँ, या आवाज नहीं आ रही आज सुनीति की प्रॉपर? नहीं सुन रहा, ओके। हमारी तो सुन रही होगी क्योंकि तभी बहुत कोशिश कर रही है जवाब देने का। सो सी इज फ्रॉम यिलगावा इन लेटलैंड। Europa heißt für mich Freiheit. Europe for me it means freedom, viele Möglichkeiten, and not only freedom, also opportunities. Freedom है यूरोप में, opportunities है, man kann reisen, neue Menschen, Sprachen und Kulturen kennenlernen. मर्जी हो अपना जर्नी करो इतने सारे कंट्रीज में बिना वीजा के जाओ, काम करो वहाँ पे, Ausland studieren, विदेश में पढ़ाई करो, arbeiten. Zurzeit lebe ich also als Au-pair-Mädchen bei einer Familie in München. अभी किसी फैमिली के यहाँ पे Au-pair-Mädchen के तौर पे काम करती है म्यूनिख में। Und lerne Deutsch and I'm learning German. Ich möchte später entweder in Deutschland oder in Schweiz Umwelttechnik studieren. Later on, not right now. Right now she is already working as a au-pair. But later on, she would like to. Explain पता नहीं। Man kann reisen, neue Menschen sprachen। इतनी फ्रीडम है यूरोपियन यूनियन में कि वन, मान का मतलब होता है वन, यू, कोई भी कहीं भी जा सकता है दूसरे कंट्री में, आपस में दूसरी कल्चर, लोगों से मिल सकता है, भाषा सीख सकता है, कल्चर सीख सकता है। ऐसे केनन लर्नन का मतलब है गेट टू नो। मान कान राइजन का मतलब है वन कैन गो जो ट्रेवल फ्रीली। अभी आप किसी विदेश में जाते हो तो कुछ तो बीच में करना पड़ती है ना, फॉर्मेलिटी बहुत होती है, आपको वीजा बनाना है ऐसे करके। तो इनमें नहीं है ये, आप उठाओ बैग और चल पड़ो। जर्मनी से पहुंच गए आप फ्रांस, तो कौन टोकने वाला है? नहीं टोकेंगे। ये उमवेल्ट होता है पर्यावरण, उमवेल्ट टेक्निक पर्यावरण से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। उमवेल्ट ये स्टडी करना चाहती है ये जिससे भी पर्यावरण को अच्छा रहता है। जैसे मान लो कि सोलर हो गया ना, इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, ऐसी टेक्नोलॉजी पे की पढ़ाई करनी है इसको। सो पर्सन वन वी हैव क्रिस्टीना राइटर, Heimatland, Milan Jaska, okay, und Baiva Graudinger, okay. Heimat, basically from where? Innsbruck. Strasbourg. Nein, Slowenien. Sie ist aus Innsbruck, ist aus Slowenien. Spricht Slowenisch, das ist seine Muttersprache. Slovenia कंट्री का नाम है, Slowenien. Lettland. Ja, und Baiva? Lettland. Ja, Jelgava, Lettland. Tätigkeiten means what the person is doing nowadays. Christina studio. Studiert. Sir, Christina studied. Sie studiert. Mit einer स्टिपेंडियम का मतलब है एक स्कॉलरशिप पे फ्रांस में एमबीए कर रही है। या होchschule कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज für Verwaltung is management. And where exactly in France? In Strasbourg. स्ट्रासबुर्ग वो जगह है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट का ऑफिस बना हुआ है। दो जगह पे है, स्ट्रासबुर्ग और ब्रुसेल।
Okay, dann Person 2. Milan Jasko. Sir, contract. Was macht er? काम क्या है इसका? Sir, institute. इंस्टीट्यूट चलाता है अपना? Yeah, sir. And contract. Fest trading. Er arbeitet als Übersetzer. Ja, er arbeitet für die EU-Generaldirektion Übersetzung in Brüssel. First, second, third line. He is working since 4 years in Brussels for European Union General Direction Translation Department. Okay, und Person 3, Baiba. Baiba. Bible. Was macht sie? Point third is Tätigkeit, means what she is doing, activities at present, how, with what she is busy, what she is doing right now. Sir, he studied in Ausland. Sie lernt Deutsch und arbeitet als Au pair. Als Au pair. Au pair medicine. Au pair का मतलब होता है जैसे किसी के बच्चे को रखने के लिए आया रखते हैं ना, वो बेबी सिटर. एग्जैक्टली. सो जर्मन सीख रही है वो और बेबी सिटर के तौर पे काम भी कर रही है. या und Europa, for her, what is Europe? What is Europe for them? European Union. Yes. इसने बोला Europa ist für mich Kontinent des Friedens. For me, Europe means, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट में तो ये है कॉन्टिनेंट des Friedens, और नहीं तो यहाँ पे ये देखो Europa bedeutet für mich Offenes. Complete last up. Offenes. EU मतलब यूरोप है. EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन. Milan Jasko. So what this The Europa Union Arbeitgeber. Arbeitgeber. So short में एक लाइन में दे रखा ऊपर EU ist mein Arbeitgeber. Ja, und Mitarbeiterinnen sowie Gesetze, Verträge and that all. Person 3, Baiba. Graudinga. Sprachen lernen. Europa ist, इसने सेकंड लाइन में बोल दिया Europa heißt für mich Freiheit. Freedom, Freiheit und viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten. Freedom and opportunities. ये है मेरे लिए यूरोप. Okay, so this was actually. Now we come to our homework. Das politische Europa. Political Europe. These are the institutions. यूरोपियन यूनियन के आपने घर पे पढ़े हैं तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आए थे, कौन क्या करता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हो एक बार? There are 6 institutions. So, यूरोपीय पार्लियामेंट. एनी आइडिया? जो भी पढ़ा है जितना समझ में आया बोलो. सुनी थी? ओके. पढ़ नहीं पाए आप लोग?
ओके चलो कोई नहीं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, टफ लगा होगा, वो कैब तो निकाली होगी आप लोगों ने। 1957 wurden die römischen Verträge unterzeichnet। unterzeichnet का मतलब है कुछ कंट्रीज आपस में आए और उन्होंने हस्ताक्षर करे कुछ कंडीशंस के साथ कि हम लोग ऐसे ऐसे मिलके काम करेंगे। 1957 का मतलब है इन द ईयर 1957। काफी दिन हो गए। वुडन दी रोमेशियन Verträge unterzeichnet। रोमेशिया का मतलब है रोम में कहीं, रोम में कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए आपस में कि मिलके ऐसे काम करेंगे। Das war der Anfang der EU। So 1957 जब कुछ कंट्री आए और उन्होंने डिसाइड किया कि मिलके काम करेंगे, इकोनॉमिकली सबको फायदा होगा। दिस वाज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का स्टार्ट उसी से मान सकते हैं, ये कह रहे हैं। इन Mai 2014 Mai 2014 fand nun bereits zum 8. Mal die Wahl zum Europäischen Parlament statt। Wahl means चुनाव, 8th टाइम चुनाव हुए 2014 में। हालांकि उसके बाद में 2015 में फिर हो गए हैं 9th टाइम। ये स्टार्ट फंड है एक्चुअली। स्टार्ट फिंडन का मतलब है टू हैपन। लास्ट में देखो स्टार्ट भी आया है सेंटेंस में, राइट। तो स्टार्ट फिंडन जो वर्ब है यहाँ पे फंड स्टार्ट फिंडन टू हैपन मींस ये चुनाव हो गए 8 बार और अब तो 9 बार हो चुके हैं। चुनाव किस बात के? पार्लियामेंट में भेजो अपने अपने प्रतिनिधि। सो rund 400 Millionen माइक में से आवाज बराबर नहीं सुन रही आपको? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। सौरभ तुमको भी आ रहा है? बैकग्राउंड नॉइस कैसे आ रहा है? अभी भी आ रहा है? Okay, let me check once. Okay, und jetzt? Jetzt ist perfekt. Okay. So, rund 400 Millionen Bürgerinnen, around, rund means around 400 million, Bürgerinnen means Bürgerinnen und Bürger, वहाँ के सिटीजन्स। ब्यूर्गर का मतलब होता है सिटीजन्स। यूरोप के जो सिटीजन्स हैं वही तो देंगे चुनाव में वोट। तो टोटल तो 500 प्लस हैं वो, लेकिन 400 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब उनकी एज 18 से ऊपर है, वही ले सकते हैं ना। सो aus 28 EU-Mitgliedstaaten, तो इसका हो जाएगा 27, एक कम हो गया अभी। इंग्लैंड waren aufgerufen, they were called, उनको बोला गया die Abgeordneten für das Europäische Parlament zu wählen, उनको बोला गया कि अपने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजो यूरोपियन पार्लियामेंट में। Aber nur 43,09% gingen zur Wahl. Only 43% people went for election, जो वोट, went for vote, वोट देने के लिए इतने ही गए। अपने लोग उससे ज़्यादा इस मामले में एक्टिव हैं पॉलिटिकली। अपने यहाँ 60 से ज़्यादा % लोग जाते हैं, 60 से 70% लोग वोट देने पहुँच जाते हैं।
यहाँ पे पहुंचे 43% लोग वोट देने। Ein Grund für die niedrige Wahlbeteiligung ist, dass viele Europäerinnen und Europäer die EU-Institutionen und deren Aufgaben nicht richtig kennen. Now they are trying to justify. अब वो कह रहे हैं कि भाई देखो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो जानते ही नहीं कि यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, क्या से काम करते हैं, उनको होश ही नहीं है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन काम करता है, उनको पता हो नहीं है। तो हियर फिनलैंड जी दी विस्टिक्स्टन इन्फॉर्मेशन इन यूबोब्लिक, और उनके साथ साथ हमको भी पता चल जाएंगी, ये वहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आई विल जस्ट एक्सप्लेन, मे बी यू रीड। Das Europäische Parlament beschließt zusammen mit dem Rat der Europäischen Union Gesetze. Die Parlamentssitzungen finden in Straßburg oder in Brüssel statt. Das Parlament hat weniger Rechte als die nationalen Parlamente. Es kontrolliert aber die Finanzen der Europaunion, den Haushalt und die Europa-Union Commission. Okay. So, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है beschließt zusammen mit dem Rat der Europäischen Union Gesetz है, ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है ये राट देर यूरोपियन यूनियन ये है। जो पार्लियामेंट जो है राट देर यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके कानून बनाने का काम करती है। दी पार्लियामेंट Sitzungen finden in Straßburg und Brüssel, दो जगह पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जहाँ पे उनकी सिटिंग होती है, मतलब चलती हैं बैठकें। Das Parlament hat weniger Rechte als die nationalen Parlamente है। हर कंट्री की अपनी खुद की भी पार्लियामेंट है, जैसे जर्मनी की खुद की भी पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी है, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, फ्रांस की खुद की भी है और फ्रांस की खुद ये वाली भी है, यूरोपियन वाली। तो ये कह रहे हैं कि भाई फाइनल डिसीजन तो फ्रांस की पार्लियामेंट के पास ज़्यादा होंगे फ्रांस के बारे में, बट ये राट देर यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलके और कानून बनाने का काम करते हैं। फाइनेंस, हाउसहोल्ड और यूरोपियन कमीशन को कंट्रोल करते हैं। यूरोपियन कमीशन करके कुछ है, उसको कंट्रोल करना, पैसे का मामला और घरेलू काम, घरेलू मतलब यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड काम वो करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट। स्ट्रासबर्ग या फिर ब्रुसेल नहीं होता। हाँ, या तो स्ट्रासबर्ग और ब्रुसेल नहीं होता। हाँ, मतलब दो जगह पे ना। हाँ, दो जगह पे है इनका कि या तो स्ट्रासबुर्ग में और ब्रुसेल में। ऑर्डर का मतलब है कि या तो इनकी बैठक स्ट्रासबुर्ग में होती है या ब्रुसेल में होती है। दो जगह पे पार्लियामेंट बना रखी है। जैसे अपने कश्मीर का था ना पहले, अब तो कश्मीर कोई स्टेट नहीं है, बट पहले जब स्टेट था तो इसकी जम्मू में भी थी विधानसभा और कश्मीर में भी थी। तो सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो जम्मू में बैठते थे और गर्मी पड़ती थी तो फिर कश्मीर में। ऐसे इन्होंने भी बना रखा है दो जगह, तो वहाँ बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट। सौरभ। Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs der 28 Mitgliedstaaten und kommt etwas viermal pro Jahr
in Brussels zusammen. Er entscheidet über die allgemeinen Ziele der europäischen Politik. Der Präsident der beziehungsweise die Präsidentin des Rates wird vom Europäischen Rat gewählt. Sie hat für 30 Monate die Funktion Organizators in und Moderators in aber kein Stimmrecht im Europäischen Rat. मतलब ये कह रहे हैं, पहले तो बात कर ली यूरोपियन पार्लियामेंट की कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है राट डेयर, देखो ये दो चीज है, ये तो है डेयर यूरोपेशन राट और इसका नाम दिया इन्होंने राट डेयर यूरोपेशन यूनियन। तो पार्लियामेंट तो है राट डेयर यूरोपेशन यूनियन के साथ मिलकर कानून बनाती है और वहां के फाइनेंस, घरेलू और यूरोपियन यूनियन का कंट्रोल करती है। फिर इन्होंने बोल दिया डेयर यूरोपेशन राट किसको बोलेंगे, जितने भी ये 27 कंट्रीज मिलके जो साथ में आए हैं, यूरोपियन यूनियन बनाया है, इनके हेड्स मतलब उनके जो भी प्रेसिडेंट्स वगैरह, चांसलर वगैरह जो भी है, इनके हेड्स को एक साथ अगर बिठा दिया जाए ना तो समझ लो हो गया देर यूरोपेशन राट। ये कह रहे हैं कि बेस्टेट मतलब ये किससे मिलके बनती है, स्टार्ट्स एंड रेगिरुम शेफिनन, जो भी मेल या फीमेल शेफ होगा वहां का 27, 28 का 27 हो गया, अब उनका कॉम टटवास फिर माल प्रो यार इन ब्रुसल सुजामन कि ये साल में 4 बार मिलते हैं, तो लगभग हर 3 महीने में इनको मिलना है, ऐसे तय कर रखा है। एरन साइडेट यूबर आलगेमाइने सीले यूरोपेशन पॉलिटिक, और ये अपने में से ही किसी एक को प्रेसिडेंट बना देते हैं और आलगेमाइने सील है कि हमारी यूरोपियन यूनियन के जो कॉमन टारगेट क्या रहेंगे उस बारे में बात करते हैं। और द प्रेसिडेंट des Rates wird vom Europäischen Rat gewählt, और इसी में ये सारे लोग हेड एक साथ मिलके किसी एक को या फिर किसी और को, ये लिखा नहीं इसमें कि उसमें एक को प्रेसिडेंट बना देते हैं इसका, अपनी बॉडी का, और वो आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, तभी तो एयर और जी बोला है। हार्ट फ्यूर 30 Monate die Funktion Organisators, और उसका काम होता है अगले 30 महीने के लिए ऑर्गेनाइजर, मॉडरेटर का काम करने का। ठीक है, ये नेक्स्ट ये शेफ वो हैं, जैसे मान लो कि अभी ओलाफ तो है जर्मनी का चांसलर, तो जर्मनी का चांसलर हो गया। ऐसे ही टोटल 27 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में, तो वो एक पूरे यूरोप का एक प्रेसिडेंट बनाते हैं। हाँ, पूरे यूरोप का नहीं, यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि पूरे यूरोप में तो कोई 50 देश होंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन में तो 27 ही हैं, इन 27 का एक बना देते हैं, है ना। ऐसे बना रखा है उन्होंने एक फंक्शनल कि चीजें कुछ कुछ इस दिशा में करते रहे। सारे अधिकार नहीं होते उनके पास, लेकिन कुछ कुछ काम करते रहते हैं वो, कि यूरोपियन की सॉलिडरिटी बने, आपस में भाईचारा रहे, आपस में बिजनेस कर लें चुपचाप, ऐसे है। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, तो अब इनका उतना बढ़िया नहीं चल रहा, लेकिन हाँ फिर भी चल रहा है, अच्छी बात है, चल रहा है ये भी। ओके, नेक्स्ट द्राई मयंक। Der Rat der Europäischen Union bezeichnet das Treffen der Minister oder
Ihnen. Der EU Staaten, es gibt also keine festen Mitglieder, sondern je nach Thema kommen die jeweiligen nationalen Minister oder Ihnen, zum Beispiel Finanzinnenminister oder Ihnen, zusammen im Rat der Europäischen Union wird über wichtige Fragen der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und der Wirtschaftspolitik entschieden. Er genehmigt den Haushalt und beschließt gemeinsam mit dem Parlament Rechtsvorschriften und Gesetze. Der Vorsitz des Rats wechselt halbjährlich und liegt dann 6 Monate bei den Minister oder Ihnen eines EU-Landes. ओके तो समझ में आया कि इसमें जो यूरोपियन यूनियन है डेर राट, ऊपर वाले में तो उन्होंने बोला था कि केवल उनके हेड्स, नेशन के हेड, जैसे 27 कंट्रीज हैं तो 27 कंट्रीज के हेड एक बार में एक साथ खड़े हो गए तो वो हो गया डेर यूरोपेश राट। लेकिन राट डेर यूरोपेश यूनियन उन्होंने कहा कि ये कोई फिक्स मेंबर नहीं होते इसके, ये नाक थीमा, ये नाक थीमा। कह रहे कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जैसे मान लो कल्चर मिनिस्टर है तो हर कंट्री में ये कल्चर मिनिस्टर, तो कल्चर से रिलेटेड कोई काम होगा तो सारे कल्चर मिनिस्टर मिल लेंगे, काम होगा तो कानून बनाना है कोई तो सारे लॉ मिनिस्टर मिल लेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है सारे फाइनेंस मिनिस्टर मिल लेंगे। ऐसे ये ना मतलब उस टॉपिक और उस मुद्दे के हिसाब से मिलते हैं। और यूबर फेस्ट का मतलब होता है फिक्स, कई सारे मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है फिक्स। एस गिफ्ट काइन एंड फेस्टन मिट लीडर, मतलब इसके कोई परमानेंट मेंबर नहीं होते कि भाई ये है। कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो जाती है तो सारे कल्चर मिनिस्टर्स को बुला लेते हैं, मतलब काम होता है तो बुला लेते हैं। कोई इसका ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अलग से तनख्वाह शुरू कर दी और ऐसे, मतलब वो तो परमानेंट है ही, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इस टाइप का मामला नहीं है। सब अपने अपने यहाँ पे करते हैं काम, कभी जरूरत पड़ी मीटिंग यहां बुला ली और कोई काम करना हुआ तो कभी कर लिया, ऐसे। सो मिनिस्टर इन फिनांस, इंडियन मिनिस्टर, मान लो होम कोई तो मिल लेते हैं। एंड विस्टिगे फ्रागन डेर यूरोपेische Außen- und Sicherheitspolitik, Wirtschaftspolitik, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि मिनिस्टरों का ही तो काम है सारा। ये तो केवल हेड हो गए, हेड के पास तो वैसे ही टाइम नहीं रहता इतना, तो ये बाकी के मिनिस्टर हैं, ये बीच बीच में मिलते हैं और अपनी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे विदेश मंत्रालय से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हो, ये सब मिलके और एयर गेनेमिक्टेन हाउस हाल्ट और बेस्लिस्ट गिमंजाम मिडम पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने पहले ही बोला था कि हम तो इनके साथ मिलके काम करते हैं, तो ये कह रहे हैं उनके साथ मिलके हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। रेस्ट फॉर शिफ्ट एंड गेजेट्स है, कानून बनाने का काम इनका उनके साथ मिलके है। देयर फोर्जिट्स डेस या राटस वेक्सेल्ट हालबियरलिश, और ये अपना बॉस, आपस में ही अपना बॉस बना लेते हैं किसी को, और वो हर 6 महीने के लिए बनाते हैं ताकि कई लोगों को बॉस बनने का मौका मिल जाए। वेक्सेल्ट हालबियरलिश मतलब 6 मंथ्स में। Und dann 6 Monate bei den Minister eines EU-Landes. Yes. Yes. Next person. Europäische Kommission. Shorob. Or my, where is that noch? Die Europäische Kommission besteht aus je einem Kommissar Beziehungsweise einer Kommissarin
their president Beziehungsweise इसका मतलब होता है एंड भी होता है और भी होता है। ये जोरदार वर्ड है ये। जब भी आपको BZW दिखे ना तो इसको ऐसे समझना, इसका मतलब ऑर्डर भी होता है और उंट भी होता है। मजेदार बात है, दोनों का तो मीनिंग ही अलग है, या एंड, लेकिन इसका दोनों ही मतलब निकल जाता है। जोरदार है ये। जैसे कोई बोले कि भाई पार्टी में कौन आ रहा है, तो मैं बोलूंगी भाई हम इश beziehungsweise mein Vater, तो इसका मतलब है मैं और मेरे पापा, और इसका मतलब ये भी है मैं या मेरे पापा। इंटरेस्टिंग है ना? यस। Their president beziehungsweise die Präsidentin der Europäischen Kommission sowie die Kommissare und Kommissarinnen werden vom Europäischen Rat ernannt. Die Kommission wird von etwa 25.000 Beamten und Beamtinnen unterstützt, von denen die meisten in Brüssel arbeiten. Die Kommission ist praktisch die Regierung Europas. Sie arbeitet zum Beispiel Gesetzesvorschläge aus, verwaltet den Haushalt und sorgt dafür, dass das europäische Recht und politische Entscheidungen umgesetzt werden. ओके, सो दी यूरोपीय कमीशन, जो यूरोपियन कमीशन है ये कौन है? देखो ये कह रहा है कि यूरोपियन कमीशन जो है ये है असली पावर तो besteht aus je einem Kommissar und Kommissarin pro Mitgliedstaat, कि यूरोपियन कमीशन बना रखा है उन्होंने, और यूरोपियन कमीशन में हर एक स्टेट से, स्टेट का मतलब कंट्री, तो 27 कमिश्नर। ये जो कमिश्नर लिखा हुआ है इसका मतलब है कमिश्नर नहीं है, इसका मतलब है इंस्पेक्टर। अपने अपने देश का एक इंस्पेक्टर बिठा देते हैं ये, कि ये इंस्पेक्टर है हमारी तरफ से। प्रो मिटग्लिड स्टार्ट der Präsident, Präsidentin der Europäischen Kommission sowie die Kommissar und Kommissarinnen werden vom Europäischen Rat ernannt। और इनको किसके द्वारा बनाया जाता है? जो यूरोपीय राट जो है वो बताती है कि हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये, सबकी तरफ से एक एक इंस्पेक्टर हो गया। Die Kommission wird von etwa 24 Beamten und Beamtinnen unterstützt। अब एक एक कमिश्नर बनाने से, मतलब एक एक इंस्पेक्टर बनाने से क्या हुआ? पूरी रिपोर्ट चाहिए उसको। जैसे मान लो कि अपने यहां पे हर जिले में एक कलेक्टर होता है, तो हर जिले में एक कलेक्टर है, तो राजस्थान के कई सारे कलेक्टर हो गए, फिर बिहार के, फिर पंजाब के, केरला के, इतने सारे जो कलेक्टर होंगे, वो सारे कलेक्टर जो भी रिपोर्ट भेजेंगे, तो ही प्रधानमंत्री को क्या पता क्या हो रहा है झुंझुनू में, लेकिन झुंझुनू का कलेक्टर मान लो उसके अंडर में है सपोज, तो वो तो रिपोर्ट दे सकता है ना एग्जैक्ट। तो ऐसे ही इन्होंने 27 तो बना रखे हैं इंस्पेक्टर, एक स्टेट का, एक कंट्री का एक, लेकिन उसके नीचे 24,000 अफसर लगा रखे हैं। जैसे इंस्पेक्टर को वो रिपोर्ट करते हैं अपने अपने यहाँ की सारी रिपोर्ट्स, तो उनको पता रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो 24,000 ये एक तरह से ऑफिसर्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं। ब्रुसेल में रहते हैं ये मैक्सिमम सारे, ब्रुसेल मतलब मेन हेडक्वार्टर पे रहते हैं, और उनके पास हर चप्पे चप्पे की जानकारी रहती है। द कमीशन इज प्रैक्टिस द रेगियरूम यूरोपास। असली में तो ये 24,000 लोग हैं, और ये जो इंस्पेक्टर्स हैं यही गवर्न करते हैं सारा, इन्हीं को तो सारा पता है कैसे क्या चलेगा।
चीफ मिनिस्टर तो स्टेट का हेड हो गया, तो स्टेट के हेड की तरह तो ये समझ लो कि इंस्पेक्टर बना दिया उन्होंने एक। अब उस इंस्पेक्टर के नीचे बहुत सारे अफसर्स हैं जो पूरी प्रॉपर रिपोर्ट दे पाते हैं, वो सब चीफ मिनिस्टर को देते हैं ना। ऐसे ही ये सारे व्यामटर हैं, ये अपने अपने इंस्पेक्टर्स को देते हैं, अपने अपने इंस्पेक्टर्स को देते हैं। तो अपने इंस्पेक्टर को तो सारी चीजें पता रहेंगी ना। बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि मान लो कि ओलाफ है जर्मनी का चांसलर, तो उसके पास तो अब और ही इतने काम है, वो ये कब करेगा? उसका तो चाय पीने तक का प्रोग्राम फिक्स है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये सारी दूसरी पंचायतों के लिए उन्होंने इंस्पेक्टर रख दिया, और वो इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसके नीचे ये रख दिए ताकि वो एक अलग से गवर्नमेंट चलती रहे। नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बिल्कुल। ओके, सो द कमीशन इज प्रैक्टिस द रिगियरुंग, वही एक्चुअली असली सरकार है यूरोपियन यूनियन की। जी आर्बाइटेड zum Beispiel Gesetzvorschläge ले गए, ये पूरी स्टडी करके कहते हैं कि इस तरह का कानून चाहिए हमको। फॉरवाल्टेड हाउसहाल्ट, असली मैनेजमेंट काम भी उन्हीं का है। और यूरोपेische रेस्ट और politische Entscheidungen umgesetzt werden, इनकी हेल्प से ही बनते हैं सारे काम। जैसे अपने यहाँ पे कलेक्टर वगैरह या जो आईएएस ऑफिसर है, ये मान लो आप कलेक्टर तो फिर भी डिस्ट्रिक्ट का एक ही है, लेकिन आईएएस ऑफिसर तो बहुत होते हैं ना, कई तरह के काम करते हैं ना वो। तो ये एक तरह से आईएएस ऑफिसर जैसे हो गए मामले। ओके, नेक्स्ट अंकित। Die Europäische Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie bestimmt die Finanzpolitik der EU und soll garantieren, dass der Euro stabil bleibt. Die EZB ist unabhängig। ओके, जैसे अपनी एक रिजर्व बैंक बनी हुई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे तो बैंक कई हैं, जैसे एसबीआई है और दूसरी कई बैंक हैं देना बैंक है और कैनरा है, कई बैंक हैं। लेकिन इन सब बैंकों को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है। उसी को पता है कि कितने पैसे छापेंगे और कितना कैसे चलाएंगे काम, है ना। तो ऐसे हाँ, तुम्हारे स्कूल के पास ही है ना। यस, करेक्ट, बिल्कुल, गोल से बिल्डिंग। यस, सो द यूरोपीय सेंट्रल बैंक, तो इन्होंने रिजर्व बैंक बना रखी है, सेंट्रल बैंक। पूरे जो यूरो जो छपता है तो वो सब ये कंट्रोल करती है। हार्ट इरेन जेट्स इन फ्रैंकफर्ट, और ये जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट में। माइन, फ्रैंकफर्ट am Main. जी bestimmt die Finanzpolitik der EU und soll garantieren, और ये फाइनेंस पॉलिटिक्स जो है यूरोपियन यूनियन की, ये करती है और इस बात की गारंटी देती है कि यूरो स्टेबल रहेगा। और उन भेंगिश का मतलब है इसको कोई गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो तभी आप देखो कि अच्छा काम करते हैं ये, कभी भी यूरो की कीमत गिरती नहीं, ऊपर ही ऊपर जाता रहता है। अभी भी शायद 84 है क्या, अपने इंडियन के हिसाब से करेंसी देखो तो 84 के आसपास है। मतलब अपन 84 रुपए कमाते हैं तो उनका 1 यूरो उसके बराबर है। ओके, नेक्स्ट अंकित। रेस्ट स्ट्राइटिस्काइटन, so der
यूरोपेइश गिरिस्टहोफ, यूरोपियन, जैसे गिरिस्टहोफ का मतलब हो गया जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन का भी बना रखा है, एक अपने अपने कंट्रीज में तो है ही, यूरोपियन यूनियन का एक बना लिया इन्होंने। हार्ट जाइनन जेट्स इन लुक्सेमबर्ग, और उसका हेड ऑफिस, जिट्स का मतलब है हेड ऑफिस, लुक्सेमबर्ग छोटे से कंट्री में है। एयर एनसाइडेड यूबर रेस्ट स्ट्राइटिस काइटन, लो रिलेटेड कोई भी झगड़े हों, चाहे आपस में कंट्रीज के झगड़े हों, यूरोपियन यूनियन वालों के, यूरोपियन यूनियन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके आपस में झगड़े हों, या वहाँ की एजेंसीज जो हैं, जो मतलब कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके झगड़े हों, या फिर प्राइवेट पर्सन है कोई, इनके सबके झगड़े ये निपटाती है। ऐसे करके इन्होंने ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं। तो इसकी वोकैब आपको बहुत ज़रूरी है समझनी। होमवर्क नोट कर लो आप एक बार। तो ये जो अपन ने समझा है ना, इसी के बेस्ड है, कई सारे होमवर्क हैं इससे रिलेटेड। ये देखो, पहले यूरोपा क्विज पढ़ के आपको बताना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी इस दी einzige Institution der EU deren Hauptsitz in Deutschland ist, कह रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन जिसका हेडक्वार्टर, अकेला एक ही इंस्टीट्यूशन है इनमें से 6 में से जिनका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। तो इसके आंसर आपको नोट करने हैं, और इसके नीचे वाली भी दोनों एक्सरसाइज इसी टाइप की हैं। व्योटर आउस्टर पॉलिटिक, यहां पे ये कह रहे हैं कि ये जो है जैसे दी ब्यामटन, ये इंस्टीट्यूशन है या पर्सन है, ये आपको नोट करना है। यहां पे वेसे वर्बन पासन कॉमन फियर माल इम यार सुजामन ordnen जी zu und notieren जी, कौन सी वर्ब कहां पे आया है ये, आप तो ये वाला पर्टिकुलर सेंटेंस उसमें कहां पर आया है तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ऐसे जैसे कॉमन फियर माल इम यार सुजामन, राइट। तो कौन से मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन की बात है, वो इंस्टीट्यूशन मतलब यहां पे तो ये हो गया, राइट। तो वो आपको लिखना है कौन से इंस्टीट्यूशन की बात है। तो 4 बार जो मिलते हैं, कौन मिलते हैं, ये। देन वन मोर, नोट दिस वन, एक और लेना है आपको, ये वाला बस। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड कुछ तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें, तो वो फैक्ट्स पढ़ने हैं और आपको भी नोट करना है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट यूरोप, ऐसे आपको भी लिखने हैं। ये तो पढ़ने ही है, इसमें भी दे रखे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके अलावा 10 फैक्ट्स अबाउट यूरोपियन यूनियन एंड यूरोप नोट करने हैं।